Hello children, very good morning. Today we are going to start one more chapter in our English literature book, that is lesson number 8, Life at Edgecombe Villa. What it is, students? Life at Edgecombe Villa. So here we are going to discuss about mostly about the life at a villa. What do you mean by villa, children? Do you know what is villa? Yes, villa is typically a type of house, है ना. villa एक क्या होता है बेटा, वन ऑफ द टाइप ऑफ द हाउस. आप इसको फार्म हाउस भी बोल सकते हो, या कोई फैंसी वेकेशन हाउस, जैसा अपनी बहुत लोग को शौक होता है ना अलग अलग तरीके की हाउसेस बनाने की. इन द सेम वे फ्यू पीपल यूज टू कंस्ट्रक्ट फार्म हाउसेस विच दे यूज टू विजिट इन द टाइम ऑफ वेकेशंस. वेकेशन के टाइम पे वो विज़िट करते रहते हैं. सो ऐसी एक विला पे, एडजकॉम्ब विला पे लाइफ कैसा था उसके बारे में, मतलब मोस्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ फैमिली who are living at this Edgecombe villa. So in order to know that, let us just go through this chapter. So firstly, warm up exercise. See this, children. Describe an ideal weekend with your parents to your classmates. What makes it special? Describe an ideal weekend. So children, what you used to do, obviously at weekend तो हमने पहले भी डिस्कस किया था. what do you mean by weekend? At the end of the week, the days at the end of the week. So mostly Saturday and Sunday. And what we used to do, we used to go for vacations, or we used to go for a park or farmhouse or to a picnic spot in this way. So now here what you have to do is, you have to describe an ideal weekend, means the favorite your favorite weekend which you spent with your parents, and you have to discuss this with your classmates. So what makes it special? So ideal weekend means that is your favorite weekend, and why it is your favorite, you can describe that in your own words. Now today let us start reading this chapter. Okay, so I am going to start the reading portion. So listen attentively and try to hold a pencil in your hand and underline the new words which you come across. Roberta, known otherwise as Bobby, Peter and Phyllis lived at Edgecombe Villa with their wonderful parents. Yes, so who are living at this villa, children? Roberta, the name of a child, known otherwise as, otherwise means इसको ऐसा भी बुलाते हैं, और कैसा बुलाते हैं? बॉबी. जस्ट लाइक यू टू हैव सम निकनेम्स एट योर होम्स ना चिल्ड्रन, जैसा आपकी नेम अलग होता है और घर पे पीहू, मिंकू, चिंकू, है ना, ऐसा कोई भी नाम से आपको बुलाते रहते हैं. इन द सेम वे हियर रोबर्टा, द अदरवाइज ऑल्सो नोन एज मीन्स इसका, और इसको ऐसा और भी बुलाते हैं कैसा? बॉबी. पीटर एंड फिलिस, ये तीनों बच्चे वेयर दे यूज टू लिव, दे यूज टू लिव एट एडजकॉम्ब विला. किसके साथ रहते थे? इट इज़ क्लियर दैट द चिल्ड्रन ऑलवेज यूज टू लिव विद देयर पेरेंट्स. एंड हाउ देयर पेरेंट्स वर वेरी वंडरफुल, मतलब बहुत अच्छे पेरेंट्स थे. ऑब्वियसली अपन सबके भी पेरेंट्स वंडरफुल पेरेंट्स थे. Edgecombe Villa was an ordinary red brick fronted villa, but it had all the conveniences in the world. ये एडजकॉम्ब विला कैसा है? इट वॉज एन ऑर्डिनरी, बहुत नॉर्मल सा विला है. रेड ब्रिक फ्रंटेड विला, मतलब विला की फ्रंट पोर्शन में आप रेड ब्रिक्स की साथ की कंस्ट्रक्शन देख सकते हो. सो इट वॉज अ नॉर्मल ऑर्डिनरी विला. बट though it is a normal villa, but means फिर भी it had all the conveniences. Underline this word, children. Conveniences का मतलब होता है comforts, means all the facilities in the world, means एक घर पे जो भी सुविधाएं चाहिए ना वो सब इस विला में है. Though it looks like an ordinary villa, it had all the conveniences and comforts that are available in the world. It had a प्रेटी हॉलवे, वो बहुत सुंदर सा और अच्छा सा हॉलवे, हॉल की जगह भी है उधर. कलर्ड ग्लास इन द फ्रंट डोर, फ्रंट डोर में खूब एक ग्लास डोर है, बट इट इज़ ऑल्सो अ कलर्ड ग्लास. वो फ्रंट डोर के ऊपर एक कलरफुल ग्लास भी लगा हुआ है. बाथरूम्स विथ हॉट एंड कोल्ड वाटर. यस, बाथरूम में जैसा आपको डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सीजन, वट एवर द टाइप ऑफ द वाटर यू कैन यूज़, वेदर यू नीड हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, both the facilities are available there. Electric bells, yes, कोई भी पहले अपने घर आएंगे तो what they used to do, they used to switch on the bell so that yes we can
come to understand that somebody are there outside. फ्रेंच विंडोज़, यस, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंच विंडोज़? ये फ्रेंच विंडोज़ क्या होते हैं बेटा? फ्रेंच विंडोज़ मीन्स अ पेयर ऑफ ग्लास डोर्स, ग्लास डोर्स होते हैं जिसके थ्रू आप गार्डन में या बालकनी में एंटर कर सकते हैं. सो दीज टाइप ऑफ विंडोज़ आर नोन एज फ्रेंच विंडोज़. एंड वाइट वॉल्स मीन्स द वॉल्स ऑफ दिस विला मे बी कलर्ड विथ वाइट कलर. adorned with many pictures. adorned, underline this word children. adorned का मतलब होता है decorated, मतलब सजाना. and ये white walls जो है इस विला में उसको कैसा सजाया गया था? with many pictures, so many types of pictures, paintings, wall hangings. we also used to do this at our homes, है ना? in the same way this the walls of the villa were decorated with many pictures. now the next paragraph. मदर वॉज ए डियर. सो मदर कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत प्यारा, बहुत प्रिय है. जैसे आप डियर किसको बोलते हैं? डियर फ्रेंड, डियर मॉम, जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं. सो हियर मदर वॉज ए डियर, DEAR, मतलब मदर बहुत अच्छी है. उस घर पे जो मदर है, इनके पेरेंट्स में जो मदर है, शी इज़ वेरी गुड. She did not spend her time visiting and waiting for folks to visit. Children, read the sentence again. She did not spend her time, मतलब वो अपनी टाइम ऐसा नहीं स्पेंड करती है. कैसा नहीं स्पेंड करती है? विजिटिंग एंड वेटिंग फॉर फॉक्स टू विजिट. विजिटिंग मीन्स किसी की घर जाना, या ये वेट करती है कि अपने घर पे कोई आए. इधर एक वर्ड है देखिए, FOLKS. फॉक्स मीन्स पीपल, लोग. कोई ये क्या दूसरों के घर नहीं जाती है मम्मी, और किसी को अपने घर बुलाने में बिज़ी नहीं रहती है. यस, वेन एवर इट इज़ नेसेसरी दे यूज़ टू गो. बट ऐसा नहीं है कि कुछ लेडीज़ की आदत होती है हमेशा किसी के घर खुद चले जाना या किसी और को अपने घर बुलाना और हमेशा दूसरे आउटसाइड पीपल से ज़्यादा बिज़ी रहना. ऐसा नहीं है मम्मा. सो शी नेवर स्पेंड्स हर टाइम इन दैट वे. शी वॉज नियरली ऑलवेज देयर. वो हमेशा इनकी नज़दीक में, नियरली मीन्स वेरी नियर, नज़दीक में रहती है. शी हेल्प्ड देम विद देयर होमवर्क. किसकी नज़दीक में रहती है? अपनी रोबर्टा, पीटर एंड फिलिस. एंड व्हाट शी यूज़ टू डू? शी यूज़ टू हेल्प देम विद देयर होमवर्क. उसकी होमवर्क में हेल्प करती है, जस्ट लाइक यार मम्मा, अपनी मम्मा भी करती है ना आप सबको. इन द सेम वे रीड अलाउड टू देम. जैसा कोई स्टोरी है, कोई पोम है या कुछ है, तो वो उसके लिए रीड आउट भी करती है. एंड प्लेड विद देम, और उनके साथ खेलती भी है. शी इवन रोट स्टोरीज फॉर देम व्हेन दे वर इन स्कूल. सो बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं उनके लिए छोटी छोटी स्टोरीज़ भी लिख के रखती थी. सो शी कुड रीड दीज आउट टू देम एट टी टाइम. सो इसीलिए लिख के रखती थी वो स्टोरीज़, ताकि टी टाइम पे, मतलब शाम को जब सब बैठ के टी चाय वगैरह लेते हैं एंड स्नैक्स वगैरह लेने के बाद सब जब बैठते हैं, चलो एक स्टोरी सुनाऊं करके, उनको स्टोरीज़ भी सुनाने के लिए जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और मम्मा फ्री हो जाती है, व्हाट शी यूज़ टू डू? शी यूज़ टू राइट स्टोरीज़ फॉर हर चिल्ड्रन. शी रोट लिटिल pauses for them for special occasions like the christening of the kittens or the refurnishing of the doll's house or when they were down with mumps. सो चिल्ड्रन, ये लाइन एक बार और सुनिए. शी रोट लिटिल पॉजेस. वो क्या करती थी? छोटी छोटी पॉजेस लिखती थी. पॉजेस मीन्स राइटिंग शॉर्ट पोम्स. आर्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री को हम पॉजेस बोल सकते हैं. या छोटी छोटी पोएम्स लिखने, कविताएँ लिखने की आदत होती है किसी किसी मदर्स को. सो शी यूज़ टू राइट दिस पॉजेस फॉर हर चिल्ड्रन. अपने बच्चों के लिए लिखती थी. वो भी कब? फॉर स्पेशल ओकेजन्स. जैसा सबके घर में कुछ स्पेशल इवेंट्स या ओकेजन्स होते हैं, अपनी बर्थडे हो या घर पे कोई न्यू बेबी का बॉर्न हुआ, या आपके घर पे पेट डॉग्स है उनकी बर्थ में, एंड कोई मैरिज प्रोग्राम वगैरह जो भी होता है, या कोई फेस्टिवल आप मना रहे हो, एट कुछ स्पेशल ओकेशंस में वो लिखती थी. कैसा कैसा स्पेशल ओकेशंस? क्रिस्टनिंग ऑफ द किटेंस. क्रिस्टनिंग मीन्स बेटा नेमिंग सेरेमनी. आपने कभी देखा हो तो अपने घर में कभी कोई न्यू बेबी बॉर्न होते हैं तो व्हाट वी यूज़ टू डू, उनकी सूरज पूजन वगैरह करवाते हैं ना अपन, तो उस टाइम पे उनको एक न्यू नेम भी देते हैं, है ना. वी विल वेलकम द बेबी विथ अ न्यू नेम ऑन दैट डे. सो ऐसे इनके घर पे कैट होगा या कोई पेट एनिमल हो, उनकी किटेंस मतलब जब उनकी बेबीज़ भी आते हैं और उसकी कोई नेम देते हैं तो उसके ऊपर एक पोएम लिख देती थी इसकी मम्मी. और द रिफर्निशिंग ऑफ द डॉल्स हाउस. रिफर्निशिंग का मतलब होता है बेटा
इन ऑर्डर टू रिप्लेस द फर्नीचर, फर्नीचर को मतलब अपनी घर पे ओल्ड फर्नीचर है उसको रिप्लेस करके न्यू फर्नीचर लाते हैं। इन द सेम वे हियर व्हाट दे आर रिफर्निशिंग, रिफर्निशिंग ऑफ द डॉल्स हाउस, डॉल हाउस को रिफर्निश करना मतलब कभी घर पे जो डॉल हाउस है उसमें कोई डॉल ख़राब हो गया या उसकी जगह न्यू डॉल ला के रखा या पुराना डॉल्स को न्यू डॉल सेट के साथ अरेंज किया, तो ऐसी टाइम पे भी वो डॉल सेट के ऊपर कुछ पोएम लिख देती थी। और व्हेन दे वर डाउन विथ मम्प्स, अंडरलाइन दिस वर्ड टू, मम्प्स होते हैं बेटा, मम्प्स इट इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज़, ये ऐसी डिजीज़ है जब ये मम्प्स से आप इफ़ेक्टेड होते हो देन व्हाट हैपेंस, योर नेक एंड थ्रोट बिकम स्वॉलन एंड पेनफुल, अपनी नेक और थ्रोट ये सब बहुत पेन होते हैं और उधर सूजन भी आ जाता है। सो ऐसा डिसीज़ का नाम है मम्प्स। सो बच्चों को कभी कभी ऐसा इन्फेक्शन हो जाती है और जब उनकी मन ख़राब हो जाती है तो उनको थोड़ा चीयर अप करने, उनको खुश करने के लिए मम्मी कुछ छोटी मोटी पोएम लिख के उनको सुनाती रहती थी। व्हेन दे वर डाउन विथ मीन्स व्हेन दे वर सफ़रिंग विथ मम्स, या कभी कुछ तबीयत ख़राब नहीं है उनकी, ऐसी टाइम पे मम्मा उनके लिए पोम्स लिखती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, फादर वॉज परफेक्ट टू, उनकी पापा भी बहुत बिल्कुल एक परफेक्ट मैन हैं। ही वॉज वेयर नेवर एंग्री, वो पापा को कभी गुस्सा नहीं आती है उनकी पापा को। वॉज ऑलवेज फेयर, हमेशा बहुत अच्छा से रहते थे बच्चों के साथ, कभी भी मतलब उनको डांटना करना कुछ नहीं करते हैं। चीयरफुल, हमेशा हैप्पी मूड में दिखते थे। एंड रेडी फॉर ए गेम, जैसा वो ऑफिस से घर आ जाते हैं तो बच्चों के साथ खेलने में लग जाते हैं। कई बार क्या होता है सो मैनी मतलब आप सबकी पापा कुछ ना कुछ दे विल बी बिजी विद देयर ओन वर्क, वेदर इट मे बी अ बिजनेस वर्क ऑफिस जो भी, फिर उधर की स्ट्रेस कुछ फादर्स व्हाट दे यूज टू डू, दे यूज टू शो द स्ट्रेस एट देयर होम्स, बट इनके पापा कंप्लीटली डिफरेंट। ही वॉज अ परफेक्ट पर्सन, बहुत अच्छे इंसान है। परफेक्ट TOO2 मीन्स ऑल्सो, मतलब जैसा मम्मी अच्छी है इन द सेम वे फादर वॉज ऑल्सो अ परफेक्ट पर्सन। ही वॉज नेवर एंग्री, कभी गुस्सा नहीं करते थे, हमेशा फेयर रहते थे, हैप्पी रहते थे बच्चों से। एंड वो ही वॉज रेडी फॉर ए गेम, जब भी आते हैं घर पे बच्चों ने बोला पापा गेम खेलेंगे, ही वॉज रेडी फॉर दैट। नाउ टर्न योर पेज चिल्ड्रन। He was often an engineer with their toys when their toys were out of sorts, means he was often means ज़्यादातर mostly वो एक इंजीनियर बन जाते हैं। मतलब बेसिकली his father may not be an engineer but many times he becomes an engineer, वो इंजीनियर बन जाते हैं कब, when their toys were out of sorts मतलब वो जब अरेंज्ड नहीं होते हैं। सॉर्टिंग मीन्स किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करके अच्छा से अरेंज करना होता है, बट व्हेन दे आर नॉट इन सॉर्ट मतलब आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब जब वो बिल्कुल एक तरीके से अरेंज्ड नहीं होते हैं टॉयस, या कई बार अपन जो भी टॉयस से खेलते हैं ख़राब भी हो जाते हैं, तो हम क्या पापा देखिए मेरी गाड़ी ख़राब हो गया तो तुरंत पापा गाड़ी भी ठीक करने के लिए एक इंजीनियर बन जाते थे। अ वेटरनरी डॉक्टर व्हेन द वुडन हॉर्स फेल अपार्ट, मीन्स कभी कभी वो खुद एक वेटरनरी डॉक्टर बन जाते थे। वेटरनरी डॉक्टर मीन्स हु लुक्स आफ्टर हु ट्रीट्स एनिमल्स को कभी कुछ होता है तो जो ध्यान रखते हैं उस डॉक्टर को हम वेटरनरी डॉक्टर बोलते हैं। सो हिज फादर बिकम्स अ वेटरनरी डॉक्टर व्हेन द वुडन हॉर्स फेल अपार्ट, मीन्स इन बच्चों के पास कभी कोई वुडन हॉर्स है तो उससे खेलते करते उनसे बाय मिस्टेक गलती से नीचे गिर गया और उसकी हाथ या पैर कुछ टूट जाता, पापा देखो मेरी बच्चे क्या इमोशनल हो जाते हैं अपनी टॉयज से, जो उनकी फेवरेट टॉय है उनके साथ ऐसा रहते हैं कि जैसा गर्ल्स की हाथ में हमेशा एक बारबी या टेडी या डॉल कुछ ना कुछ उनके हाथ में रहती है, ये मेरा बहुत फेवरेट, उन्हीं को लेके बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं। सो ऐसे इमोशनल हो जाते हैं बच्चे, थोड़ा ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं टॉयज से। तो जब भी ये वुडन हॉर्स अगर गिर गई, उसका कुछ पार्ट निकल गया तो पापा खुद वेटरनरी डॉक्टर होके उसको ठीक कर देते हैं। एंड रिस्टोर द डॉल्स हाउस व्हेन इट हैड स्टार्टेड लीनिंग साइडवेज, और ये अपनी डॉल हाउस को भी रिस्टोर कर लेते हैं, मीन्स उसको ठीक कर देते हैं। कैसा, व्हेन इट हैड स्टार्टेड लीनिंग साइडवेज, जब वो साइड की तरफ झुक जाता है, ऐसी टाइम पे वो मतलब साइड की तरफ झुक जाना मीन्स लीन्ड मीन्स बेंट होना, मतलब झुक जाना। जैसा डॉल हाउस में डॉल की कोई पार्ट है, वो डॉल आगे हो जाती है, पीछे हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो उसको भी बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में पापा अगेन
वापस उसको ठीक कर देते हैं. So what his father used to do, he often becomes an engineer and he often becomes a veterinary doctor, and he always used to restore the toys which were leaned or bent on sideways. On Peter's 10th birthday, एक बार पीटर के 10th बर्थडे हुआ था, तब मदर एंड फादर गॉट हिम अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स. यस ऑब्वियसली जब आपकी भी बर्थडे होती है मम्मी पापा खूब सारे गिफ्ट्स लाते हैं. इन द सेम वे पीटर के 10th बर्थडे पे मम्मी और पापा मिलके दे गॉट सो मेनी गिफ्ट्स टू सरप्राइज हिम. द स्पेशल वन amongst 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 the special one, special means एक फेवरेट टॉय है उसका, उनमें से amongst means in between them, उन सब मतलब खूब सारे टॉयस लाए, बट among those one of the special toy is there. It was a smart little fire engine. एक छोटा सा फायर इंजन ला के दिए थे उसको, वो उसकी फेवरेट टॉय है. After all, Peter did have his heart set on becoming an engineer. After all means सब होने के बाद, मतलब after all बहुत दिन के बाद, जैसा बच्चे जब छोटे हैं सोचते हैं ना मैं बड़ा होके ये बनूंगा वो बनूंगा. In the same way Peter did have his heart set on becoming an engineer. पीटर ने सोचा कि चलो मैं एक इंजीनियर बन जाऊंगा. पीटर के 10th बर्थडे में इसको फायर इंजन मिला था और इसने एक दिन बैठा बैठा सोच रहा था कि यस मैं ना एक इंजीनियर बन जाऊंगा. सेट हिज हार्ट मतलब इसने एक डिसीजन लिया कि मैं बड़े होके एक इंजीनियर बनूंगा. द इंजन रैन प्राउडली अराउंड द लिविंग रूम विथ इट्स टेंडर ऑफ टॉयज. द इंजन रैन प्राउडली मतलब रोज़ वो घर पे जैसा न्यू टॉय आता है, रिमोट कंट्रोल कार, एरोप्लेन्स, ये सब आपकी पेरेंट्स सबको दिलाते हैं ना, तो आप क्या करते हो दिन भर उसको चलाते रहते हैं. इन द सेम वे इधर ये पीटर भी अपना ये फायर इंजन को कंटिन्यूसली चला रहा था और वो लिविंग रूम में खेलता था फायर इंजन लेके. विथ इट्स टेंडर ऑफ टॉयज. हियर द मीनिंग ऑफ टेंडर इज अ ट्रक अटैच टू द इंजन, मतलब इंजन के पीछे एक ट्रक भी अटैच किया गया है, तो वो उसके साथ ये हमेशा खेलता था. टिल कब तक ऐसा हुआ था? वन डे एक दिन, either because of Peter's inexperience or Philly's honest intentions, the engine broke down and would run no more. अरे क्या हुआ, एक दिन ऐसा आराम से ये बहुत अच्छा से प्राउडली मतलब बहुत बढ़िया सा चलता था. क्या ये अपना ये फायर इंजन जो लाए थे उनके बर्थडे में, ये कब तक चला था ऐसा? एक दिन तक. एक दिन क्या हुआ, किसकी वजह से हुआ? एदर बिकॉज ऑफ. देखना बेटा एदर और दो वर्ड्स यूज़ किया. एदर और का मीनिंग मैंने पहले भी समझाया आपको, मतलब ये भी हो सकता है या वो भी. सो एदर बिकॉज ऑफ पीटर्स इनएक्सपीरियंस, पीटर की इनएक्सपीरियंस का मतलब होता है बेटा उसका अनुभवहीनता. मीन्स उसको टॉय से खेलने को या वो टॉय को वो संभाल नहीं पाया होगा, उससे कोई मिस्टेक हुआ हो जिस वजह से वो टॉय थोड़ा ख़राब हो गया हो या ब्रेक हो गया हो, कुछ भी हो सकता है. पीटर की इनएक्सपीरियंस हो गया मतलब वो अच्छा से उसको हैंडल नहीं कर पाया, खूब चला दिया या बाय मिस्टेक वो अपने हाथ से गिर गया हो, कुछ भी हुआ हो. और फिलिस डिसअनेस्ट इंटेंशंस मतलब डिसअनेस्ट इंटेंशन, ये सॉरी बेटा फिलिस ऑनेस्ट इंटेंशंस. ऑनेस्ट इंटेंशन मीन्स एक्टिंग इन अ वे दैट डजेंट मीन हार्म. मतलब ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है? ईमानदारी. इंटेंशन मतलब आपकी मन की भावनाएं, तो वो ऐसा सोच के उसको ख़राब नहीं किया कि वो ख़राब हो जाए, है ना. एक्टिंग इन ए वे दैट डजेंट मीन हार्म, वो उसको हार्म पहुंचाना नहीं चाहता है, बट स्टिल इट कुड हैव बीन ब्रोकन मतलब वो चीज़ ख़राब हो गया होगा, वो बाय मिस्टेक उसकी पैर लग गई हो या हाथ से फिसल गई हो, कुछ भी हुआ होगा. तो पीटर की वजह से या फिलिस की वजह से वो फायर इंजन जो है वो थोड़ा द इंजन ब्रोक डाउन, वो फायर इंजन ख़राब हो गया है. एंड वुड रन नो मोर. जब वो इंजन ये ट्रक से अलग हो गया और ख़राब हो गया तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाया और चल ही नहीं पाया ये इंजन. पीटर्स आइज वर रेड. पीटर की आंख पूरा लाल हो गया. बट ही ट्राइड हार्ड नॉट टू क्राई. फिर भी वो उसने बहुत कोशिश किया कि मैं नहीं रोऊं, है ना, क्योंकि उसने भी जानबूझ के नहीं किया ना फिलिस ने जानबूझ के वो ट्रक को कुछ ख़राब किया. बट द इंजन वो कुछ अनएक्सपेक्टेडली इट कुड हैव ब्रोक डाउन एंड इट स्टार्टेड सॉरी इट डजेंट स्टार्ट मतलब वो स्टार्ट नहीं हुआ और ब्रेक हो गया है.
Okay.